खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी को देखते हुए सियासोल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के पास स्थित मैदान में फास्टबेकी, रानीगंज सिटीजन फोरम और रानीगंज शरण्या संस्था की तरफ से 200 पौधे लगाए गए ताकि ऑक्सीजन की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सके। इसके साथ ही टीएमसी के शहीद दिवस के अवसर पर शहीद बेदी पर माल्यार्पण किया गया। सियासोल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के पास स्थित मैदान में फास्टबेकी, रानीगंज सिटीजन फोरम और रानीगंज शरण्या की तरफ से इस महामारी के दौर में घट रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में 500 पौधे का लगाने का लक्ष्य लिया गया है, जिनमें बुधवार 200 पौधे ही लगाए गए। इसके साथ ही 21 जुलाई यानी टीएमसी के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सियासोल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के पास नवनिर्मित टीएमसी पार्टी ऑफिस के शहीद बेदी पर शहीदों को नमन कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में रानीगंज एमएलए तापस बनर्जी, बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय, आरपी खेतान, युगल किशोर गुप्ता, रविंद्र सिंह, गौतम घटक, रानीगंज के शरण्या संस्था की संस्थापिका ज्योतिका बनर्जी, आलोक बोस, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के महासचिव निर्मल चटर्जी, सह सचिव जगन्नाथ मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमारे रानीगंजेर एवं एडीडीए चेयरमैन हमारे खूब काछे खूब प्रिय दादा हमारे काছে এসেছেন। দাদা দু চার কথা বলবেন। সহযোগিতা করা এবং আগামী দিনেও সহযোগিতা করব এবং আজকে 200 না আজকে 500 গাছ এনারা লাগাচ্ছে পুরো সিয়াসোল গ্রাম জুড়ে এবং যে স্কুলটি যে বিদ্যালয়টি রয়েছে বিদ্যালয়ে তারা বৃক্ষরোপণ করছে এবং আমরা মনে করি আগামী দিনে রানিগঞ্জ শহরকে হেরিটেজ শহর তো সেটাকে যদি সেই জায়গায় আনতে হয় তো সিটিজেন ফোরাম রানিগঞ্জ ডেভেলপ কমার্স থেকে আরম্ভ করে শরণ্যা আসানসোল পৌর নিগম মিলিতভাবে আমরা যে প্রচেষ্টা শুরু করেছি আগামী দিনে রানিগঞ্জকে সবুজ করে যাচ্ছে। শ্রদ্ধেয় বিধায়ক আমাদের মাননীয় তাপস ব্যানার্জি মহাশয় আমাদের ভিতরে এসে আজকে বৃক্ষারোপণ কার্যক্রমে হাজির হয়েছেন। আমরা ওনার কাছে কৃতজ্ঞ। ওনার আজকে আপনারা জানেন এই শহীদ দিবসে তাদের ব্যস্ততা কীরকম থাকে, তা সত্ত্বেও উনি আমাদের কথায় আর আমাদেরকে 5-7 মিনিটের জন্যে আসার যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা পালন করলে সেই সুবাদে উনি এসেছেন। আমরা আপ্লুত এইসব কাজে আমাদের বিধায়ক মহাশয়কে পেয়ে আমরা সত্যি গর্বিত। আমাদের আজকে অনুষ্ঠানটা এই বৃক্ষারোপণের প্রোগ্রাম আছে ফাস্টবেকির তরফ থেকে, আমাদের রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরামের তরফ থেকে, রানীগঞ্জ শরণ্যার তরফ থেকে আর আপামর জনসাধারণ রানীগঞ্জের তরফ থেকে। আমি প্রথমেই নিজেদের জন্য এই অধিকার চাইতে গিয়ে 1993 সালে 21 জুলাই তৎকালীন আজকে মুছে যাওয়া, ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া কমিউনিস্ট পার্টির সেই সময় পুলিশের গুলিতে, তার সরকারের পুলিশের গুলিতে মন্ডন দাস, মুরারি চক্রবর্তী সহ কল্যাণ ব্যানার্জি সহ 13 জন তাজা যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তারা খালি বলেছিল নো আইডেন্টি কার্ড নো ভোট। মমতা ব্যানার্জির আন্দোলনের তারা সাথী হয়েছিল। সেদিন মমতা ব্যানার্জিও মারা যেতে পারতেন। সৌগত রায় তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে মঞ্চের নিচে যদি না নিয়ে যেতেন, তাকেও বামপন্থের সেই ট্রিগার হ্যাপি পুলিশ তাকে গুলি করে মেরে দিত। আজকে আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেস করি, আমরা যারা বিধায়ক, যারা সাংসদ, যারা কেউ মন্ত্রী, যারা কেউ নেতা, যারা কেউ পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছি, জেনে রাখবেন এদের আত্মত্যাগ ছিল বলেই আজকে আমরা এই জায়গায় পৌঁছতে এসেছি। তাই সবসময় এটা মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের যদি ইচ্ছাকে আমরা উপেক্ষা করি, সাধারণ মানুষকে যদি আমরা উপেক্ষা করি, আমরাও কিন্তু ইতিহাসে আস্থা করে চলে যাব। লাঠি বা বন্দুক কোনদিন মানুষকে সঙ্গে ক্ষমতায় রাখতে পারে না। একমাত্র মানুষের পক্ষে কাজ মানুষকে ভালোবাসা। কি মেসেজ যে মানুষকে যে একটা প্রকৃতির ভারসাম্য তো নষ্ট হচ্ছে, তো আমরা
যদি সবাই গাছ লাগাবার প্রতি সচেষ্ট হই, তাহলে প্রকৃতির ভারসাম্য কিছুটা হলেও ফিরে আসবে। কারণ প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমরা বলি, সেইটা দেখা দিচ্ছে চারিদিকে বিভিন্নভাবে। এত যেসব অসুখের প্রাদুর্ভাব আগে ছিল না, সেই সব অসুখের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। নিশ্চয়ই প্রকৃতির উপর নির্বিচারে অত্যাচারের জন্য এগুলো হচ্ছে। তাই আজকে সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে, আর শরণ্যা বলে একটি অর্গানাইজেশন আছে, তাদের পক্ষ থেকে আমরা এখানে বৃক্ষরোপণ করলাম। তারা আগামী দিনে আরও বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ করবে, বিশেষ করে শিয়ালসোরকে বেশ করে, যাতে এলাকাটা সবুজায়ন হয়। পরিবেশের দূষণ থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে গাছই হচ্ছে একমাত্র উপায়, যে গাছকে আমরা রোপণ করতে পারি, আমরা গাছকে বাঁচাতে পারি। আর আজকে আমাদের শহীদ স্মরণে আছে, আপনারা জানেন 93 সালে 13 জন তরতাজা যুবক। আমরা যখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ গিয়েছিলাম মানে নো আইডেন্টি কার্ড নো ভোটের দাবিতে, তৎকালীন সিপিএমের সরকারের পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে 13 জনকে হত্যা করেছিল এবং প্রায় হাজারখানেক ছাত্র যুব আহত হয়েছিল। তো সেই দিনটাকে আমরা সেই 93-94 সাল থেকে আমরা প্রতিদিন স্মরণ করি। মনে রাখতে হবে, আমরা শুধু ক্ষমতায় এসেছি 2011 সালে, তার আগে আমরা প্রতিদিন স্মরণ করেছি। 2011 থেকে আজকে 2021 আমরা প্রত্যেক বছর তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই, তাদেরকে স্মরণ করি এবং প্রতিনিয়ত স্বীকার করি তাদের সেই রক্তত্যাগের জন্য আজকে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমরা বাংলার মানুষ, আমাদের ক্ষমতার আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে, আমরা যেন তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা সঠিকভাবে আমাদের কাজটুকু করে দিতে পারি, মানুষের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। প্ল্যান্টেশনের উদ্যোগ রানীগঞ্জের কোন কোন জায়গাগুলো বেছে নিয়েছেন আজকে? আমরা এসএসসি ক্লাবটা নিয়েছি শেয়ারশোলের, নিবারণচন্দ্র ঘটক পার্ক নিয়েছি, বেসিক স্কুল নিয়েছি এবং আমাদের শেয়ারশোলের যে শ্মশানটা আছে সেই শ্মশানটা প্লাস তার দুপাশের রাস্তাটা। আচ্ছা, গাছ লাগিয়ে শিল্পাঞ্চল কয়লাঞ্চলবাসীকে কি মেসেজ দিচ্ছেন? আমরা সবুজায়ন করছি, কারণ আপনারা জানেন করোনার থার্ড ওয়েভ শুরু হয়ে গেছে। তো সেই ওয়েভে যেটা আমাদের এই ধ্বংসের কারণটাই হচ্ছে অক্সিজেনের কমতি। আমরা সেই অক্সিজেনের পরিপূরণ করার জন্য একটি গাছ একটি প্রাণ, এই বার্তাটা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। শরণ্যা সারা জীবনই কোনো না কোনো সৃষ্টিশীল বার্তা নিয়ে চলে। এবারের আমাদের বার্তা হচ্ছে সবুজায়ন, একটি প্রাণ একটি গাছ। এখনো দেখা যাচ্ছে থার্ড ওয়েভের এই ঘটনা আসতে চলেছে এবং তো অনেকেই দেখা যাচ্ছে শহরবাসীরা এখনো বিনা মাস্কে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছেন। এই বিষয়গুলোতে কি অ্যাওয়ারনেস? এই অসাবধানতার জন্য তারা থার্ড ওয়েভের শিকার হবেন এবং শুধু প্রশাসন কাজ করলেই হবে না, সাথে জনসাধারণকে থাকতে হবে। কারণ আমরা যদি স্যানিটাইজার ইউজ না করি, আমরা যদি মাস্ক ব্যবহার না করি, আমরা যদি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা থার্ড ওয়েভটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো না। তাই শহরবাসীর কাছে আমার অনুরোধ, আমরা সিটিজেন ফোরাম, রানীগঞ্জ শরণ্যা এবং সাউথ বেঙ্গল, আমরা সকলে মিলে মিলিতভাবে করজোড়ে মিনতি করে আমরা বলছি যে আপনারা মাস্ক ব্যবহার করুন, আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করুন, আপনারা স্যানিটাইজার ইউজ করুন এবং নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করুন। আমার নাম জুথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি রানীগঞ্জ শরণ্যার সম্পাদিকা। रानीगंज सरन्या और फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज आज उद्योग में 21 जिला में क्या किया आपने? जैसा कि आप जानते हैं कि आज बंगाल की जो इतिहास है उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बहुत से लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी शहीदियाँ भी दी थी। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि यहाँ की राज्य सरकार की तरफ से एक शहीदी दिवस भी मनाया जा रहा है और एक तरफ हमारे मुस्लिम भाई अपना पर्व भी मना रहे हैं ईद का। इसके साथ ही आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण दिन में रानीगंज सिटीजन फोरम, फॉसबेकी और सारंगिया संस्था जो कि सियारसोल से है, ये लगातार रानीगंज के नागरिकों के भले का काम करती है, समाज के भले का काम करती है। तो आज हम लोगों ने मिल करके एक पौधारोपण प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन का एक प्रोग्राम किया है, जिसमें हम लोग ये तीनों संस्थाएं मिल करके 500 गाछ जो है, वृक्ष जो है वो हम लोग लगाएंगे, जिसमें राजबाड़ी के इलाके में भी लगाएंगे, ये पूरे इलाके में। और इसके अलावा हम लोग राम बागान से लेकर के जो बांसड़ा रोड है वहाँ पर भी, उन इलाकों में भी कुछ पौधों का रोपण हम लोग करेंगे। केवल एक ही मकसद है कि जिस तरह आज हम लोग देखते हैं कि वातावरण में काफ़ी तब्दीली आई है, अब बहुत ज़्यादा पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे शहरीकरण के चक्कर में हम लोगों ने अपने जो पौधे हैं उसको काट करके शहरों का विकास करने में अपने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ दिया है। और जिसका खामियाजा अभी हम लोगों को इस कोरोना काल में भी भुगतना पड़ा। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग कृत्रिम ऑक्सीजन की तलाश में परेशान थे, कई लोगों की जानें भी गई हैं और पूरे देश ने ये मंजर देखा है। तो
तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे शहर के लोग हैं, उन लोगों को भरपूर प्रकृति से जो दिया हुआ ऑक्सीजन है वो मिले। इसकी जो समुचित व्यवस्था है ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिल करके एक आंदोलन का शहर में जहाँ जहाँ हम लोग ये वृक्ष लगा सकते हैं उसको लगाएं। और इस काम में हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि फॉस्बेकी जैसी बड़ी जो संस्था है और सारंगिया जो कि लगातार ही एक सामाजिक काम कर रही है, वो मिल करके इस प्लेटफॉर्म पे साथ हैं और हम सभी मिल करके इस मुहिम को सफल करेंगे। आपका नाम डेजिग्नेशन? रविंदर सिंह, सेक्रेटरी रानीगंज सिटीजन्स फोरम। আজকে শহীদ স্মরণ উপলক্ষে আজকে যারা উদ্যোক্তা সম্মানীয় আরপি ঘোষাল মহাশয়, গৌতম ঘটক মহাশয় সহ এই সাউথ বেঙ্গল আপনাদের কি চেম্বারের যে উদ্যোগ এটা আজকের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বাংলাও সবাই মিলে যত এনজিও আছে, যত মানুষ আছে, যত সংস্থা আছে গাছ লাগাবার ব্যবস্থা করছেন এবং গাছ লাগাচ্ছেন। রানিগঞ্জ শহরেও আমরা বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে গাছ লাগাচ্ছি, আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে গাছ লাগাচ্ছি এবং সরকারের পক্ষ থেকেও আমরা গাছ লাগাচ্ছি। খুব সুন্দর এবং ভালো লাগলো আজকের যারা উদ্যোক্তা তারা আজকের এই যে অনুষ্ঠানটি করার জন্যে, এবং আমরা রানিগঞ্জ বড় মানে আসানসোল পৌর নিগম সংস্থার পক্ষে আমরা আছি এবং সহযোগিতা করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शहीद दिवस के अवसर पर जिला तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से एनएसबी रोड स्थित माझी भवन में टीएमसी पार्टी ऑफिस के बाहर शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया गया। ऑडियो और माइकिंग के तहत शहीदों की कुर्बानी की कहानी बताई गई। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस शाखा की तरफ से बुधवार शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम की गई। जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के सचिव सौमित्र बनर्जी के नेतृत्व में एनएसबी रोड स्थित माझी भवन टीएमसी पार्टी ऑफिस के बाहर शहीदों को याद कर माल्यदान किया गया। इस कार्यक्रम में जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता कंचन कांति तिवारी, आशीष घोष, टीडीबी कॉलेज के जीएस रोहित दत्त मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दिन ऑडियो और माइकिंग के तहत लोगों को शहीद दिवस के बारे में जानकारी दी गई। आइए आपको बताते हैं कि 21 जुलाई 1993 को आखिर हुआ क्या था। साल 1993 में ममता बनर्जी युवा कांग्रेस की पश्चिम बंगाल अध्यक्ष थी। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सचित्र वोटर कार्ड की मांग की। उस मांग के साथ राज्य की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के मुख्य सचिवालय से कांग्रेस की ओर से एक आम अभियान का आह्वान किया गया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में 21 जुलाई को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन तृणमूल का आरोप है कि उस वक्त उनके जुलूस पर पुलिस की ओर से गोलियां चलाई गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई और काफी उथल पुथल भी हुई थी। बाद में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जन्म के बाद भी 21 जुलाई के दिन को नहीं भूली। तृणमूल हर साल इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाती आ रही है। আমাদের দলের নির্দেশ মতো, দিদির নির্দেশ মতো আমরা রানীগঞ্জ শহরে মাঝি ভবনের সামনে 21শে জুলাই দিনটিকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা পালন করছি। আমরা তৃণমূল যুব কংগ্রেস জেলা, পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে, এবং আমাদের রানীগঞ্জ টিডিবি কলেজের ছাত্ররাও রয়েছে সাথে, আমরা রানীগঞ্জের বুকে এই দিনটিকে পালন করছি। আমরা দিদির যেমন নির্দেশ রয়েছে আমরা সেইভাবেই আমরা আজকে এই দিনটি পালন করছি। অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশ এবং সাইনি ঘোষের নির্দেশ মতোই আমরা যা আমাদের কর্মসূচি রয়েছে তাই করতে চলেছি। আমাদের যা ভার্চুয়ালভাবে দিদি যা বক্তব্য রাখবেন সেই বক্তব্য আমরা এখানে মাইক লাগিয়ে এবং আমাদের মোবাইলের মাধ্যমে সব আমরা এখানে সেটাকে সম্প্রসারণ করব, যাতে মানুষ সেটাকে দেখতে পারে। মানুষের অবধি দিদির বার্তা, দিদির যে নির্দেশ থাকবে আজকে তা আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকে এখানে উপস্থিত আছি। সৌমিত্র ব্যানার্জি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা সেক্রেটারি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड स्थित शिशु बागान के टीएमसी पार्टी ऑफिस और 93 नंबर वार्ड स्थित ब्राह्मण भवन में पूर्व एमआईसी दिवेंदु भगत द्वारा वर्चुअल माध्यम से शहीद दिवस को याद कर उनके द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में बताया गया। दोनों जगहों पर टीवी लगाए गए थे ताकि लोग आराम से इस बारे में जानकारी जुटा सके।
आसनसोल नगर निगम के 36 नंबर वार्ड स्थित शिशु बागान टीएमसी पार्टी ऑफिस और 93 नंबर वार्ड स्थित ब्राह्मण भवन में पूर्व एमआईसी आसनसोल नगर निगम के प्रशासक दिवेंदु भगत की तरफ से वर्चुअल कार्यक्रम किया गया। 21 जुलाई शहीद दिवस के अवसर पर शिशु बागान टीएमसी पार्टी ऑफिस और ब्राह्मण भवन में टीवी लगाकर लोगों ने शहीद दिवस के बारे में जानकारी जुटाई। यहाँ दिवेंदु भगत ने लोगों को 21 जुलाई के बारे में जानकारी दी। 21 जुलाई के दिन तत्कालीन वामपंथी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 13 कांग्रेस कर्मी शहीद हो गए थे। इन शहीद कांग्रेस कर्मियों को भी याद कर तृणमूल हर साल उनके नाम पर शहीद दिवस मनाती है। टीएमसी का मानना है कि शहीदों को याद कर न सिर्फ उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, बल्कि हमें एक नई ऊर्जा मिलती है कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। इस दिन लोगों को खिलाने की भी व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में टीएमसी पार्टी के नेता गोवर्धन केवड़ा, आयुष झुंझुनवाला, मदन दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। শহীদদেরকে আমরা ভুলিনি। এই শহীদদের রক্তে রাঙা এই বাংলা আজকে মুক্ত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বাংলার জননেত্রীর আশীর্বাদে লড়াইয়ে আজকে আমরা সেই শহীদদের আমরা স্মরণ করে প্রত্যেক বছরের মতো এবারও এটা করা হচ্ছে। এবং এবার একটু কোভিড পিরিয়ড, এই কোভিড পিরিয়ডের জন্য এবার আমাদের জনসভা সেভাবে কলকাতায় শহীদ ময়দানে হয়নি। এই জনসভা এবার এখানে আমরা ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মধ্যে আমরা এগুলোকে করছি। কোন কোন জায়গায় মানে করছেন আপনি? এবার রানীগঞ্জে বিভিন্ন জায়গা হচ্ছে। আর রানীগঞ্জের মধ্যে আমার এই শিশুবানের 36 নম্বর অফিসে আর 93 নম্বর ওয়ার্ডে, যেখানকার আমি কাউন্সিলর, সেই ওয়ার্ডে এই শহীদ দিবস মানানো হচ্ছে। এবং ওখানে ব্রাহ্মণ ধর্মশালায় প্রচুর মানুষ ওখানে আজকে এসছেন এবং ওখানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনার নাম? দিব্যেন্দু ভগত। বর্তমানে আমি एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड सदस्य आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के अनुसार ही बुधवार शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम किया जा रहा है। रानीगंज के कुमुर बाजार स्थित जमुनामयी स्कूल के सामने टीएमसी की तरफ से शहीद वेदी में माल्यार्पण कर शहीदों को याद किया गया। रानीगंज के 90 नंबर वार्ड स्थित कुमुर बाजार के जमुनामयी स्कूल के सामने टीएमसी की तरफ से शहीद वेदी में माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया गया। इसके साथ ही टीवी लगाकर वर्चुअल माध्यम से शहीद दिवस कार्यक्रम को मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के अनुसार और कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य भर में वर्चुअल कार्यक्रम करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत ही जगह जगह टीएमसी पार्टी ऑफिस में वर्चुअल और टीवी प्रोजेक्टर के तहत शहीद दिवस को मनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में टीएमसी नेता रंजीत रामदेव, आयन मजूमदार, विजय गोराई मुख्य रूप से उपस्थित थे। একুশে জুলাই আমাদের 90 নম্বর ওয়ার্ড কুমারবাজারের সমস্ত কর্মীবৃন্দ, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যারা কর্মী, তারা সমস্ত সবাই মিলে একসাথে আমরা এই শহীদদের 13 জন যে শহীদ মারা গেছিলেন কলকাতার ব্রাহ্মণ রোড থেকে যে মহাকরণ অভিযান হয়েছিল, তাতে সেই সময়কার যে বামফ্রন্ট সরকার যে নিপীড়িত করে গুলি চালিয়েছিলেন আমাদের 13 জন আমাদের কর্মীকে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই স্মরণসভা আমরা পালন করলাম। আমাদের 90 নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত কর্মীরা এখানে সম্মিলিত হয়েছিল এবং তাদের স্মৃতিতে আমরা শহীদের বেদিতে ফুল এবং মাল্যদান করলাম। এবং আমাদের সিনিয়র যারা ছিলেন তারাও পুষ্পস্তবক দিয়ে আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে রঞ্জিত রামদে, আমি এই ওয়ার্ডেরই একজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। 90 নম্বর ওয়ার্ড থেকে রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের এএমসি
বড়ো 2 রানীগঞ্জ বড়ো 2 90 নম্বর ওয়ার্ডের তরফ থেকে আমরা আজকে কুমারবাজারে যমুনাময় স্কুলের সামনে আমরা আজকে শহীদ স্মরণ করলাম, শহীদ বেদিতে মাল্যদান করলাম। কারণ আপনারা জানেন যে কোভিড পরিস্থিতি চলছে। আমরা 2020 সালেও আমরা কলকাতায় যেতে পারিনি, দিদির জনসভায় আমরা সেখানে শহীদ স্মরণে আমাদের সেখানে আমরা উপস্থিত হতে পারিনি। এই বছরও তাই করোনা পরিস্থিতির যে ভয়াবহ মহামারী নিয়েছে, সেই মহামারীতে আমরা কলকাতায় এই বছরও আমরা যেতে পারিনি। তাই জন্য দিদির নির্দেশ অনুযায়ী আজকে আমাদের ভার্চুয়াল সভা, সেই সভা আজকে আমরা এখানে অনুষ্ঠিত করেছি। আমাদের এখানে টিভি স্ক্রিন আমরা লাগিয়েছি এবং আমরা ভার্চুয়াল সভাটা আমরা আমাদের এই 90 নম্বর ওয়ার্ডে সব জায়গায় আমরা প্রচার করছি আমাদের দিদির বক্তব্য আমরা শোনানোর জন্য। আজকে আমরা চারিদিকে মাইক সেট লাগিয়েছি, আমরা টিভি স্ক্রিন লাগিয়েছি এখানে। এবং আজকের যে 1993 সালের যে 21শে জুলাই, এই 21শে জুলাইয়ের যে আমাদের যে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের যে বর্বরের যে অত্যাচার, সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এবং আমাদের যে যার জন্য আমাদের দিদি তৎকালীন তখন যুব সভাপতি ছিলেন কংগ্রেসের দিদি, সেই দিদির নেতৃত্বে আমরা যে আমাদের আন্দোলন করেছিলেন যারা, তাদের একটা ইস্যু ছিল যে যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে তাদের কাছে যেন প্রমাণপত্র থাকে, প্রমাণপত্র ছাড়া কারা ভোট কেউ দিতে পারবে না, এটা হচ্ছে মূল ইস্যু। তো সেই ইস্যুতে কিন্তু তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর যে বর্বরোচিত অত্যাচার, তাদের প্রশাসনের যে অত্যাচার, লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে 13 জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এই শহীদ দিবস পালন করি। আজকে আমরা সেই ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে আমরা আজকে এই শহীদ দিবস আমাদের 90 নম্বর ওয়ার্ডে পালন করলাম। আমার নাম অয়ন মজুমদার, 90 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक।
जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने बुधवार को ECL के कोयला खदानों का दौरा कर ECL के CMD, तमाम अधिकारी एवं विभिन्न एरिया के महाप्रबंधक के साथ कुनस्तोड़िया एरिया गेस्ट हाउस में बैठक कर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विशेष चर्चा की गई। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने बुधवार को ECL के कोयला खदानों का दौरा कर ECL के CMD, तमाम अधिकारी एवं विभिन्न एरिया के महाप्रबंधक के साथ कुनस्तोड़िया एरिया गेस्ट हाउस में बैठक की और चर्चा करते हुए कहा कि पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए और कोयला उद्योग को कैसे बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ECL संकट के दौर से गुजरी, जबकि इस वर्ष हम लोग बेहतर प्रदर्शन की ओर अग्रसर है। पिछले वर्ष कोयले का डिस्पैच कम हुआ था, जबकि इस बार कोयले का डिस्पैच हो रही है एवं अब तक ECL बेहतर उत्पादन भी कर रही है। उन्होंने कहा कि पावर तथा स्टीम वेंडर किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है उसे देखना था। इन सभी विषयों को लेकर यह परिदर्शन किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 28 अक्टूबर 2009 को इसी कुनस्तोड़िया कोयलेरी के एक नंबर पीट के अंडरग्राउंड में फॉलन कोल के कारण कोयला खदान के अंदर आग लग गई थी। काफी प्रयास के बाद उस पर नियंत्रण पाया गया था। कोल इंडिया के चेयरमैन का बुधवार को इसी कोयला खदान का दौरा करने पर सभी अधिकारियों में खुशी देखी गई। जब वे कोयलेरी पहुंचे तो कोयलेरी के एजेंट स्नेहाशीष मुखर्जी ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया। वहीं क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने भी उन्हें और ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा को माल्यार्पण कर सम्मानित किया। चेयरमैन श्री अग्रवाल कुनस्तोड़िया कोयलेरी के एक नंबर पीट बॉयलर हाउस नंबर 1 स्टीम में वेंडर नंबर 2 के इलेक्ट्रिक वेंडर का निरीक्षण किए, यह देखने के लिए कि एशिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विशेष रूप से भूमिगत खदान कैसे चलाया जा रहा है। इस पर अधिकारियों के साथ चर्चाएं की गई। गेस्ट हाउस में आयोजित 11वां सेफ्टी बैठक में निर्णय लिया गया कि बॉयलर में कोयला जलाने और इंजन चलाने से प्रदूषण फैल रहा है, यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अतः 50 साल पुराने वेंडर इंजन को तुरंत बदलना चाहिए। उन्होंने कुनस्तोड़िया क्षेत्र के बांसड़ा कोयलेरी के खुले खदान का दौरा किया, जहां उन्होंने ECL के CMD से वहां चलाए जा रहे कुछ कोयला खदान के विभिन्न मशीन जैसे मिशन संजीवनी, मिशन सुदेश, मिशन मितवा, मिशन इंद्रधनुष से जानकारी प्राप्त की। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कोयला खदानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उच्च तकनीकी पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उनसे पूछे जाने पर कि कोयलेरी में सैंडस्टोनिंग कोयला खनन क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, लेकिन वह इस मुद्दे पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं किए, न ही अंडरग्राउंड कोयलेरी के विकास के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की। इस दौरे में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के साथ ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा, TS2 चेयरमैन MK सिंह, ECL के DT V रेड्डी, DT JP गुप्ता, DP विनय रंजन, CBO मुकेश कुमार, APM पल्लव चक्रवर्ती, TAC2 CMD नीलाद्री राय, ECL सेल्स एडवाइजर AK मिश्रा तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। ठीक है सर, आज आपने ECL के कई प्रोजेक्ट का परिदर्शन किया है, तो हम लोगों के मीडिया के समझ बताइए कि क्या आपने कैसा महसूस किया है और यहाँ की व्यवस्था को लेकर के आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ECL पिछले साल क्राइसिस में था, क्योंकि पिछले साल कोयले की डिमांड कम हुई थी, जिसके कारण डिस्पैच कम हुए। लेकिन इस साल ECL काफ़ी अपने प्रोग्रेस के लिए तत्पर है और ऑलरेडी जो डिस्पैच है पिछले साल से ज़्यादा हो चुका है। प्रोडक्शन में थोड़ी कमी है, जिसका कारण इस साल जून में ज़्यादा बारिश होना है। जुलाई में इनका प्रोडक्शन अब शुरू हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है इस साल ECL बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पर जो झांझरा की माइंस में नया ये रेल लाइन बिछाने का कार्य है, उसकी समीक्षा करना था उद्देश्य, और पावर
तथा ये स्टीम वाइंडर किस प्रकार से ऑपरेट करती है ये भी मैं समझना चाहता था, और नॉर्मल जिस प्रकार से हर एक सब्सिडी में जाकर वहाँ के समस्याओं से अवगत होने का प्रयास बेसिकली ये है। सर बालू का बहुत कमी है, बालू का चलते यहाँ अरे बालू का कमी साहब देखेंगे, जीएम साहब देखेंगे, जीएम साहब से पूछो सर, बालू का समस्या साहब बताएंगे। सर अंडरग्राउंड माइंस के बारे में आपकी क्या परियोजना है? अंडरग्राउंड माइंस को क्या सोचा है सर आपने? सीएमडी साहब ज़्यादा डिटेल में बता। चलो हम बताते हैं शाम को तुमको। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर अजय ठाकुर एवं अन्य अधिकारियों और रैफ के जवानों को लेकर बराकर फाणी परिसर से बराकर स्टेशन तक रूट मार्च करते हुए बेगुनिया तक गए। इसी बीच रास्ते में पड़ने वाले मस्जिद में मौलाना सम्मेले और बकरीद की उन्हें बधाइयां दी। आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर अजय ठाकुर एवं अन्य अधिकारियों और रैफ के जवानों को लेकर बराकर फाणी परिसर से बराकर स्टेशन तक रूट मार्च करते हुए बेगुनिया तक गए। इस बीच बराकर स्टेशन रोड स्थित मस्जिद के मौलाना से मिले और बकरीद की मुबारकबाद दी एवं मौलाना से जानकारी लिए कि उक्त मस्जिद में नमाज होने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं हुई और किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं। मौलाना ने कहा, सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार नमाज अदा करने वाले सभी लोग मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग मानते हुए नमाज अदा किए हैं और उक्त नमाज में लगभग 40 लोगों ने भाग लिया। उनके साथ एडीसीपी अभिषेक मोदी, एसीपी अमर अली मौला, कुलजे थाना आईसी अस्सी मजूमदार, बराकर फाणी में स्पेशल ड्यूटी पर आए पुलिस अधिकारी शुभ्रतो सिन्हा, बराकर फाणी प्रभारी हेमंत दत्ता शामिल थे। बराकर में शांतिपूर्वक बकरीद पर्व संपन्न हुआ एवं सभी लोगों को पुलिस प्रशासन ने मुबारकबाद दी। बकरीद के दौरान बराकर के मस्जिदों के आसपास के अलावा कई संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात की गई थी। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा कार्यकर्ताओं को बंगाल में हुई हत्या को लेकर बुधवार शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। वहीं कुल्टी के भाजपा विधायक अजय पोद्दार ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को बचाना और तृणमूल कांग्रेस को रास्ते से हटाना है, ये बात कही एवं कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पार्टी कार्यालय में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। एक तरफ जहां तृणमूल शहीद दिवस मना रही है तो वहीं भाजपा भी अपने कार्यकर्ताओं के बंगाल में हुई हत्या को लेकर शहीद दिवस के रूप में मना रही है। कुल्टी के स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को बचाने और तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के बाद ही भाजपा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद सहित अन्य सदस्यगण आज रात घाट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अजय पोद्दार ने आगे बताया कि पार्टी के निर्देश के अनुसार पश्चिम बंगाल और गणतंत्र बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पार्टी कार्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। इस अवसर पर कुल्टी ब्लॉक मंडल ए के अध्यक्ष बबलू पटेल, जिला सचिव केशव पोद्दार, गोविंद माझी, सत्यजीत राय, मनमोहन राम, प्रेम देवदास, जोगा मंडल, राजू यादव, सोनू चौरसिया, बिकी साउ सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। आज पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और पश्चिम बंगाल में गणतंत्र बचाने के लिए और पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्य से वर्चुअल मीटिंग चल रही है और सारे मंडल में, सारे विधानसभाओं में, सारे जिला ऑफिसों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद आज राजघाट पर जाकर इसके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और राजघाट पर मौन रखकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो शहीद हुए हैं उनके लिए मौन रखा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह बंगाल में 3 से 77 हुई है और हमारे शहीदों को सही श्रद्धांजलि उसी दिन मिलेगी जिस दिन हम लोग तृणमूल को 213 से 0 पर ले आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का शासन बंगाल में स्थापित करेंगे, वही दिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे कर्मियों को। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा में बच्चा तस्करी मामले में एक और व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम विकास कुमार गुप्ता है, जिसे बांकुड़ा जिला अदालत में चालान किया गया।
बांकुड़ा में बच्चा तस्करी मामले में एक और व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम विकास कुमार गुप्ता है, जिसे बांकुड़ा जिला अदालत में चालान किया गया। बांकुड़ा के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल कमल कुमार राजोड़िया सहित एक शिक्षिका और अन्य 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ में एक और व्यक्ति का नाम सामने आने के बाद बांकुड़ा पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी कमल कुमार राजोड़िया बच्चों को विभिन्न जगहों से लाकर राजस्थान तस्करी के लिए भेजा था। आरोपी कमल कुमार राजौरिया बच्चों को विभिन्न जगहों से लाकर राजस्थान तस्करी के लिए भेजा करता था। দাদা কেন কেন অ্যারেস্ট করা হলো? কি কেসে তুমি কি জড়িত ছিলে? না স্যার, আমার মুদিখানা দোকান আছে। তাহলে কি এই যে প্রচার চক্র এইটার সঙ্গে কি যোগাযোগ ছিল কোনো? না, তোমার নাম উঠে আসছে। তোমার নাম উঠে আসছে, কি বলবেন? নাম উঠে আসছে, ব্যাস কি বলবো আর। কোথায় বাড়ি তোমার? দুর্গাপুর। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।